ماضی میں کیا کیا ہے؟ میں نے کوئی قتل کیا ہے؟ کسی کو پی ایس اے میں بند کیا ہے؟ کوئی الیکشن کی چوری کی ہے 1987 میں؟ بتائیں نا ماضی میں کیا کیا ہے؟ میں نے 2.5 سال مین اسٹریم میں کیا. اب اگر میں نیشنل کانفرنس کے بیانات دیکھوں تو لگتا ہے کہ جتنا بھی پرابلم جموں کشمیر میں وہ میری وجہ سے ہے یا میرے والد محترم کی وجہ سے ہے. لیکن 28 سال پارلیمنٹ ممبر ان کے وہاں رہے, 32 سال حکومت انہوں نے کی, مل کے یہ 60 سال ہوتے ہیں. یہ 60 سال کا جواب تو دینا پڑے گا. 7 سال میں لوگ مرے ہیں, یہاں ہر گاؤں میں قبرستان. 60 سال میں ہزاروں لوگ پی ایس اے میں اندر گئے, کہیں کوئی نے 20-25 سال کے بعد چھوڑے, جیل سے چھوٹے. ان کا جواب کون دے گا؟ میں دوں گا کیا جواب؟ یہ دیں گے. میرے سے کیوں سوال پوچھتے ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے, میں نے اچھے ہی کام کیے ہیں. ہم پر یہ گناہ ہے کہ بھئی ہم نے جو سوشل ویلفیئر 200 روپیہ دیتے تھے وہ ہم نے 1000 روپیہ کر دیا ہے. اب وہ میں نے غلطی ہے, ویسی غلطیاں میں نے بہت کی ہیں. سجاد صاحب, آپ ہمیشہ اپنے بیان میں یہ کہتے ہیں کہ ملٹنٹ سے ایرپٹ ہوئی پوسٹ رجیم. تو ریسنٹ نیشنل کانفرنس نے یہ الزام لگایا ہے کہ جو البرک ہے وہ آپ کے فادر کی کریشن ہے. آپ کا کیا کمنٹ ہے اس پہ؟ دیکھیے میری بات سنیے, میرے فادر پولیٹیکل تھے ہمیشہ, رائٹ. وہ الیکشن نہیں لڑتے تھے, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مطلب الیکشن پہلے لڑتے تھے, بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا. جب 87 کی ریگنگ ہوئی ان کو بند کیا گیا, پھر انہوں نے الیکشن کو خیر بات ہو. اسی لیے ہمارے کسی بھی الیکٹورل پروپیگنڈا میں آپ ان کا فوٹو نہیں دیکھیں گے, کیونکہ جب وہ اس دنیا سے گئے وہ الیکشن نہیں لڑتے تھے. ہم ان کی اس میموری کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. میں سجاد لون ہوں, میں نے پہلے دن سے ہی میری پروکلیوٹی جو تھی, میری ٹینڈنسی ٹورڈز مین اسٹریم پالیٹکس, ٹھیک ہے نا. گن جو ہے 1987 میں آیا, ریگنگ کے بعد آیا, اور تقریباً 50 تنظیمیں تھیں. فرض کرے پہلے تو یہ جھوٹ ہے, وہ ایک تنظیم لون ثابت, باقی 49 کہاں سے آئے, وہ کس نے بنائے, آپ سمجھے. تو اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمارے گھر پر الحمدللہ کوئی خون کا دبا, کسی کا قتل نہیں ہو سکتا. ہاں, بچانے میں بڑا کام کیا ہے. جو میرے والد محترم تھے وہ نان وائلنس کے ٹوٹل جو ہے اس کے حق میں تھے, اور کبھی انہوں نے یہ وائلنس کو جو کنڈوم نہیں کیا. باقی یہ سب ڈائیورشنری ٹیکٹکس ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نیشنل کانفرنس پچھلے 70-80 سال یہاں کی پالیٹکس پر چھائی ہوئی ہے. انہوں نے اقتدار کا سب سے زیادہ جو ہے انہوں نے ٹائم گزارا ہے. بڑے بڑے ایکارڈز انہوں نے سائن کیے ہیں. جواب دہی ان کی ہے, وہ ہم سے سوال نہ پوچھیں. تو پولیٹکس اور ریلیجس کو مکس کیا جا رہا ہے کہ ریسنٹلی آپ کو یہ بولا گیا ہے کہ آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گی. آپ کا کیا کمنٹ رہے گا اس پہ؟ نہیں, اب یہ ہے کہ جنت کا سرٹیفکیٹ نہ ہم نے کبھی بانٹا ہے نہ ہم بانٹتے ہیں, لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے ہے. تو باقی بہرحال جنت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. تو الحمدللہ مطلب مسلمان مینز کی جو ایک پائس مسلم ہو, جو ہماری مسلم تھیالوجی ہے اس میں جنت کا حقدار وہی ہوتا ہے, وہ الحمدللہ. نیشنل کانفرنس لگاتار جو ہے پیپلز کانفرنس یہ نشان ساتھی ہے کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم میں شامل ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ان سے پوچھ کے ہوتا ہے, جو بھی بی جے پی عمل کرتے ہیں. لیکن آپ کا اس پہ کیا رد ہے؟ دیکھیے میری آپ بات سنیے, نہ میں اے ٹیم ہوں نہ میں بی ٹیم ہوں, میں کشمیری ٹیم ہوں. میں کشمیری ہوں. کشمیری دیکھیے یہاں پچھلے 30 سال میں ہزاروں لوگ مر گئے, جیل گئے. ظالم اور مظلوم دو تھے. میں اپنے آپ کو مظلوم مانتا ہوں. میں جیل گیا, میں نے انٹراگیشن کھایا. یہاں ہزاروں لوگ ہیں جو قبروں میں ہیں. یہ سب وہ ہیں جن پر ظلم کیا گیا. میں عمر عبداللہ سے پوچھنے والا تھا, وہ ظلم کرنے والوں میں تھا یا کہ اس پر ظلم ہوا؟ وہ جیل گیا, انٹراگیشن لیا. جب ہم جیلوں میں سڑ رہے تھے وہ تو فارن منسٹر تھا بی جے پی کا, وہ تو واجپئی صاحب کا فارن منسٹر تھا. تب تو وہ بات نہیں کسی کو کرنے دیتا تھا, اور جو فارن ڈگنیٹری آتی تھی تب وہ جا کے ان کو بولتا تھا وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی تشدد نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. میرے سامنے کھڑا ہو, میں کیا کر سکتا تھا ایز اینیمل ہسبنڈری منسٹر؟ میں کون سا بڑا اتنا توپ تھا کہ میں کوئی ہوم منسٹری کا ڈیسیژن لیتا؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. یہ تو فارن منسٹر تھا, اس کے بعد چیف منسٹر تھا, فادر اس کا چیف منسٹر تھا. دے ہیو ٹو آنسر فار دیز کوشچنس. باقی میں کشمیری ٹیم ہوں. ہاں, اور ایک اور چیز بتا دوں, میں ڈنکے کی چوٹ پر جب جاؤں گا انشاءاللہ پارلیمنٹ, اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کے بعد لوگوں نے چاہا وہاں جاؤں گا, میں لوگوں کی بات کروں گا.
मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में हैं उनकी बात करूंगा, डेवलपमेंट की बात करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं, 5 साल ये थे, एक मर्तबा जब उन्होंने बात की हो कि लोग जेलों में हैं, एक मर्तबा उन्होंने बात की हो कि अगर गुजरात के बच्चों को, तमिलनाडु के बच्चों को कोई सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन, तो कश्मीरी बच्चों को क्यों? तो गए किस लिए थे? कर क्या रहे थे वहां? सिर्फ अपने केसेस का वो एडवांस कर रहे थे कि जनाब अगर हमने क्रिकेट में चोरी की है हमको अंदर मत करो। We will not use parliament to get to get some sort of leeway for our crimes. हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है, हमारे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ही नहीं है, और दिन में जो है बयान देते हैं और रात के अंधेरे में वहां उनके साथ बैठे हुए होते हैं। वो हम काम नहीं करने वाले। सज्जन साहब यहाँ पे जाना चाहता है, अगर आप बात करें इंडिया ब्लॉक की बात करेंगे, पीएचडी की बात करेंगे, पीएचडी के हिस्सेदार महबूबा मुफ्ती साहिबा अभी ऐलान किया है कि 3 सीटों पे हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे, उस पर आपका क्या रिएक्शन है सर? ठीक है, उनकी मर्जी है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, वो हिस्सेदार है यहाँ की पॉलिटिक्स का, लड़े, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आजाद साहब ने भी कल फॉर्म भरा कि आजाद साहब आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं नहीं, हमारा उनसे कोई सपोर्ट की कोई, ये सब बातें जो है ना, जितना भी आवाम है, आजाद साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, ये सब मीडिया की बातें। और फिर वो उठता है जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो है, अपना क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला साहब, वो उठता है, फिर जी ये, फिर जी वो ए टीम, वो बी टीम, वो सी टीम, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हम बात नहीं करते हैं। हमारे काडर तो बोलते हैं वो कश्मीरी कौन सा, वो क्या कश्मीरी, व्हाट कश्मीरी? कश्मीरी बोलता है, तू नहीं बोलता। किसी कश्मीरी को जानता तेरा दोस्त कोई कश्मीरी नहीं, मैं जी बड़ा कश्मीरी, क्या कश्मीरी? हाँ, कश्मीरी को खत्म करने में आगे, जेल डालने में आगे, पीएसए लाने में आगे, पोटा लाने में आगे, क्या मैंने लाया? ये किसने लाया? लेट हिम आंसर। ये क्या होता है डाइवर्जन करना? भाई वो ऐसा, चलो जी मैं खराब, मान लिया मैं खराब, चलो आई एग्री, फर्ज करे जी मैं ही खराब। अब वो जवाब दे पीएसए का, अब वो जवाब दे जिनको जेल डाला, अब वो जवाब दे जो उनके टाइम में मरे, अब वो जवाब दे। मेरे खराब होने से उमर साहब अच्छे नहीं होते, किसी के ए टीम या बी टीम होने से वो अच्छे नहीं होते हैं। वो अपने लेट हिम आंसर फॉर हिज ओन डीड्स। अब उनके फादर हैं, आज से कोई 1.5 महीना पहले वो लिटरली सरेंडर कर रहे थे, कश्मीरी कौम को ह्यूमिलेट कर रहे थे, भीख मांग रहे थे इंडिया टुडे के उस टीवी चैनल पर कि जनाब मुझे अगर ये बुलाएंगे मैं जाऊंगा, मैंने दरवाजे भी खुले रखे हैं, उनको अलाउड है, वो नहीं है ए टीम बी टीम। वाई? एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि हम एलीट, हम कुछ भी कर सकते हैं। We don't give a damn. They are no elites. The people will decide inshallah. हम नहीं मानते हैं इसका ये मतलब कि क्या हम कोई है? एलीट जो है। अपनी पार्टी या पीसी आजाद साहब की जो यार आप सुनो, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं ना, आप जो सवाल पूछ रहे हो, अभी हमारी किसी से कोई बात नहीं हुई है। अगर होगी तो बिल्कुल ओपन में होगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं होगी? मैं जाऊंगा, मैं तो मांगूंगा सपोर्ट। क्या इस पर क्या बैन है? Sir, post 2019, Kashmir has witnessed a drastic change. No stone fighting, no militancy, no hartalas. Whom you want to you discredit? नहीं, देखो मैं आपको बात बता दूं, नो डाउट कुछ लॉ एंड ऑर्डर की चीजें, बट हर एक चीज का एक कॉस्ट होता है, इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। ये जो आप बोलते हैं कि भाई वो नहीं है, ये नहीं, दिस डज नॉट सम ऑफ द एंटायर पिक्चर। फिल्म अभी बाकी भी, हमने यहाँ रहना है। जो आज हो रहा है, क्या ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है? वी हैव टू लुक एट दिस। क्या कहीं लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी जो आज तक शॉर्ट टर्म में मेजर्स लिए जा रहे हैं टू कर्ब इट? माई ओनली थिंग इज कि कश्मीर का जो यूथ है, आप उसको जीने दो, उसको तंग मत करो। ये पुलिस वेरिफिकेशन सिस्टम, इसको छोड़ दो। अगर वी डोंट, हम पहले स्पेशल थे, हमारे पास 370 था, चलो स्पेशल नहीं तो बराबर तो बनाओ। ऐसा वी कैन नॉट बी अनइक्वल इंडियंस, वी आर हियर एज इक्वल इंडियंस, as equal as a young man from Haryana, as equal as a young man from Tamil Nadu, from Karnataka. We cannot be unequal Indians. That's all we are saying. और वही इनको बोलना था, वहां नहीं बोला। 370 लिया तो ये हंस रहे थे, टोकन एक बंदा करता वो भी नहीं, तो बोलना है ना, लोगों को तो बोलेंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, बट दे हैव बीन देयर फॉर 28 years, 28 साल ये पार्लियामेंट में गए हैं। चलो हो सकता है मुझे कोई जिद हो सकता है मैं झूठ बोलता हूं, यही हमें बोले कि 28 साल में उनने कब कब वकालत की है कश्मीरी के लोगों को। बिलखुसूस जो पिछले 5 साल था, बड़ा अहम था, देयर वाज नो असेंबली, यही 3 इलेक्टेड मेंबर्स थे। बताइए, जो हमारी एस्पिरेशंस थी, जो हमारा पेन था, कब कब इन्होंने पार्लियामेंट में वहां शोकेस की? कभी भूख हड़ताल पर ही जाते, कभी बाहर धरना ही करते, नहीं, कुछ नहीं। चंगा है जी, सारा चंगा है।
सज्जाद साहब, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, तो आने वाला इलेक्शन है, पार्लियामान, आप खुद उम्मीदवार हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? कश्मीरी आवाम के लिए आप क्या करेंगे, क्या लेकर आएंगे? हमारा है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी, सर्विस सेक्टर और टूरिज्म, इसमें सर्विस सेक्टर और अपना जिसमें टूरिज्म भी आता है, और जो आपका हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर, अलाइड फील्ड्स है, राइट, जो कि मगर बिग टिकट जिसमें कैश क्रॉप्स होता है, तो वेरी साइंटिफिकली। एंड डिग्निटी इज नॉट कि हमें मिलता क्या है, डिग्निटी है कि हमें मिलता कैसे है। व्हाट यू गेट इज नॉट व्हाट मैटर्स, हाउ डू यू गेट इट? डू यू गेट इट विद रिस्पेक्ट और डू यू गेट इट विद ह्यूमिलिएशन? We want that we should be equal partners, equal stakeholders, and treated with dignity. We believe in dignified coexistence. We don't believe in a coexistence wherein we are junior partners. हम अपने equal terms पर वहाँ होना रहना चाहते हैं. That is my concept of dignity. उसी में ये आता है कि जो कानून पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए है, वही कानून कश्मीर के बच्चों के लिए भी है. अगर हिंदुस्तान के हर हिस्से में बाप की सजा बेटे को नहीं देते, बेटे की सजा बाप को नहीं देते, तो कश्मीर में क्यों ये कानून है कि बाप की सजा बेटे को देते हैं? इसलिए कि ये कानून हमारे इन कश्मीरी लीडर्स ने लाए. व्हाट इज एन एडवर्स CID सर्टिफिकेट? ये इन्होंने लाए. उन्हें चेंज हो सकते थे, इसमें कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, असेंबली की जरूरत नहीं, एक सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकल सकता है. दे नेवर चेंज्ड इट. एंड मिस्टर उमर अब्दुल्ला has utilized, even PDP गवर्नमेंट जिसमें मैं भी एक हिस्सेदार था, उन्होंने भी ये यूज किया है. उससे पहले NC ने भी यूज किया है, कांग्रेस वालों ने भी यूज किया है. कश्मीर के लोगों को एटलीस्ट अंडरस्टैंड तो हो कि ये जो कानून का वेब है, ये इन्होंने बनाया है, इन्होंने इंप्लीमेंट किया है, इसीलिए इनका मुंह बंद है, ये बात नहीं कर सकते हैं. वो इनसे पूछेंगे कि भाई साहब जब आप थे हुकूमत में तो तब चेंज क्यों नहीं किया? तब तो आप यही लॉज. लेट एटलीस्ट कश्मीरी पीपल हैव द राइट टू नो व्हाट द रियलिटी इज. फिर वो अलग बात है वो हमें वोट दे या नहीं दे. लेकिन अब जैसे आप मीडिया वाले हैं, आप भी सवाल नहीं करते हैं. मैंने इतनी बार देखा ना, आप 87 का पूछते हैं. देखिए एक चीज बताओ, जहां तक 87 का सवाल है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट CBM टुवर्ड्स कश्मीरी सूबी कि एक FIR लॉज हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रिगिंग की. आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडिकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज, एंड नो अकाउंटेबिलिटी. वो इंसान नहीं थे क्या? मां के पेट से जन्मे नहीं थे क्या? तुम ऐसा कहने पेट में? डोंट दे मैटर? डोंट दोज लाइव्स मैटर? व्हाई इजंट एनीबडी आस्किंग अबाउट दैट? मैं आपसे पूछता हूं, आप क्यों नहीं उससे पूछते हो कि 87 का क्या हुआ? व्हाई डिड वायलेंस erupt after 87? And now the new thing, that did you implement these laws? Did you say no to passport in your time? Did you say कि अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारा चचेरा भाई किसी जगह एंटी सोशल या एंटी स्टेट एक्टिविटीज में था, आपको एडवर्स सर्टिफिकेट? दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर. यू कैन नॉट पनिश अ सन और अ कजन और अ ब्रदर और अ फादर क्योंकि जी उसके खानदान में किसी ने कुछ किया. ये एक आदमी से कोई 100-200 बंदा इन्वॉल्व होता है. ये ठीक बात नहीं है. वी आर लिविंग ऑन, हम एक टाइम बॉम्ब पर है. इसके सोसाइटल इंप्लीकेशंस है. ऐसी फौज जाएगी कहां? आप इनको पासपोर्ट नहीं दोगे, गवर्नमेंट नौकरी भी नहीं करने दोगे, तो लोन भी नहीं दोगे, तो जाएंगे कहां? ये आप एक्सक्लूड कर रहे हो 50-60% पॉपुलेशन. ये मैं आज बोल रहा हूं ना, आज तक किसी ने क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? बिकॉज दे हैव इंप्लीमेंटेड इट. मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया. सर, आपकी स्पीच से ये लग रहा है कि पावर में आने के बाद आपका शायद पहला यही काम होगा कि जो 87 के जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पर्चा होगा. लेकिन आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन यू आर कंटेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम यू सेड वंस आई विल कम टू द पावर आई विल टेक टास्क टू दोस हु आर इन्वॉल्वड इन द किलिंग ऑफ माय फादर. बट सो फार नो एक्शन, नो 2 ही सीटें मिली है. ज्यादा तो आप देखो सब वादा करते हैं, चोरी जितने भी कातिल आई खिलाए. ये मेरा वादा है. देखो मैं नहीं कहता हूं, मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है. व्हाट हैव दे डन इन टर्म्स ऑफ फारूक साहब क्रिकेट स्कैंडल? बताइए क्या किया? 87 के बारे में क्या किया? यहां अगर थोड़ा बहुत, अगर सलाम हर्ष जैसे दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता पुलिस, 70-80 करोड़ सीधे खा गया. ही इज आउट एट द प्लेजर ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट. अगर मैंने ये किया होता मैं तो जेल में होता, मुझे पता है.
देखिए ये आहत साहब मेरे साथ साथ हैं, आप इसको बताओ क्या इसके नाखून उठाए गए या नहीं इंट्रागेट में एनसी हुकूमत में? ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये आपको उस एसएसपी का नाम भी बोल सकता है या भी नहीं बोलना, जिसने उसको बुलाकर बोला भाई मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे तुम्हारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव ने बोला है इसको उठाओ और टॉर्चर करो और उसके बाद इसके माँ बाप मेरे पास आने चाहिए, मैं छुड़वाऊंगा, फिर ये मुझे ज्वाइन करेंगे। ये जो लिस्ट ऑफ OGWs है, हैव यू आस्क्ड हिम? ये OGW का लिस्ट जो आजकल प्रॉब्लम है, ये किसने बनाया? ये तो 96 के बाद उन्होंने बनाया है। अब ये चलिए अगर OGW का लिस्ट बनाना है जो कि इन्वॉल्व था एंटी स्टेट एक्टिविटीज में, इन्हें तो उनका नाम डाला है, ये हमारे आशिक साहब का नाम डाला है। क्यों? क्योंकि ये उनका पॉलिटिकल मुखालिफ था। ये हवा से लिस्ट नहीं आए, ये सब लिस्ट इन्होंने बनाए हैं। लेट देम टेल मी कि इन्होंने नहीं बनाए और लोगों को पता चले। बड़ी बड़ी बातें, OG-A टीम, OG-B टीम। अरे भाई साहब, सियासी बांग तेरा स्टार्ट आरएसएस में हुआ है। आरएसएस वालों ने तेरे को प्रोजेक्ट करके फॉरेन मिनिस्टर बनाया, नौजवान आदमी, मतलब, और वो भी किस पार्लियामेंट इलेक्शन में जहां 95% लोग घर में बैठे हुए थे, खुद तब टप्पे डालते थे, जाकर तू बना, यू वर द पोस्टर बॉय कि साहब कश्मीर में कोई जुल्म नहीं है, कोई मर नहीं रहा। ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर है, वो बोले था या नहीं था? लेट हिम आंसर दिस क्वेश्चन, वाज ही द पोस्टर बॉय ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट? क्या उसका उस गवर्नमेंट में रहना ये था कि कश्मीर में सब ठीक है, कोई जुल्म नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? बताएं मुझे गलत बोल रहा हूं। बाकी बातें तो उठेंगी। पीपल इन इंडिया टॉप वाले 10-20 में है, बयान ऐसे देता है, ऐसे, और मालूम है इसको बच्चा नहीं है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है इस स्टेट का, कि सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है। इस बयान से वायलेंस हो सकती है, इनके वर्कर को कोई मार सकता है। खुद बेगैरत आदमी लगभग 100-150 बंदे इसको गार्ड कर रहे होते हैं, राइट? और हमारे आहत साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे आशिक साहब को इनसिक्योर बनाता है, हमारे गुलाम हसन साहब को, इनके पास तो सिक्योरिटी नहीं। हम डरते नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है, लेकिन मैं सिर्फ इनकी नियतों की बात कर रहा हूं। सज्जाद साहब, यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे। एक साइड से जन्नत के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना बोल रहे हैं कि हम किसको देंगे, दूसरी साइड से माह मुबारक मुताबिक महीने में, कल आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा कि इस माह मुबारक का महीने में चंगम चबाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। किस चीज मुझे इसमें मत डालिए आप प्लीज। नहीं देखिए, वो उमर साहब और उमर साहब के खुदा के बीच में, उसमें मुझे मत डालिए। लेकिन हाँ, ये जो जन्नत का सर्टिफिकेट है, जरा थोड़ा वो भी कम करे, ज्यादा जन्नत की सर्टिफिकेट ना दे। सर, अब सफा रिमूवल की बातें की जा रही है, दिस इंडिकेटर सिचुएशन हैज बीन क्वाइट इम्प्रूव्ड, बट एट द सेम टाइम फॉर्मर लेजिस्लेटर इज स्टिल बिहाइंड द बार्स। व्हाट इज योर कमेंट? देखिए, मेरी अब जो अफसफा का बात है, राइट, अब होम मिनिस्टर ने बोला हमने उठाना है। व्हाट शुड अ क्लेवर पॉलिटिशियन डू हु इज अ कश्मीरी? ही शुड एनकरेज हिम। बिल्कुल, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यहां से हमारा लीडर बोलता है ये झूठ बोलते हैं, ही इज बेलिंग देम आउट ऑलरेडी। वी शुड पुट पब्लिक प्रेशर ऑन हिम कि यस रिमूव इट। इनकी दुआ है कि ना रिमूव हो, इनको इलेक्शन इशू मिले। बाकी जहां तक जो इंजीनियर साहब है या कोई और, वो यू हैव टू लुक एट, वो कोर्ट पे मामला है, राइट? एंड आई बिलीव जितने भी हमारे कश्मीरी लोग या कश्मीरी इश्तिहार में हैं, चाहे इवन यासीन है, चाहे शबीर साहब हैं, बाकी हैं, ह्यूमैनिटेरियन इस पर, और जो कि एक जिसको बोलते हैं क्लोजर या रिकंसिलिएशन में, वी शुड इन्वॉल्व हमारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बड़ा दिल दिखाकर रिकंसिलिएशन का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, जिसमें लीनियंसी दिखानी चाहिए। मैं खुद जेल रहा हूं, मुझे पता है जेल में रहना क्या है, ठीक है ना? तो आई वुड हैव थॉट अ लार्जर रिकंसिलिएशन प्रोसेस, कि आई हैव ऑलवेज बैटेड फॉर इट। और इतना ही नहीं, इनके जो बच्चे हैं जिनको आदमी को पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, बाकी चीज, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी ड्रीम्स हैं, हमारे बच्चों के भी ड्रीम्स हैं। आई अपील टू देम, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज उनको तंग मत दो। उनको अगर ख्वाब है आगे जाने का, उनको जाने दीजिए, नहीं लिखवाइए उनसे कोई चीज, उनको दे दीजिए। मैं सपोर्ट करता हूं, आई सपोर्ट फॉर इट, आई बैट फॉर इट, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इफ आई विन, these will be, I will raise these questions, because हिंदुस्तान के लोगों को भी हक है कि वो समझे हमारी पोजीशन क्या है। उनको भी तो ये झूठ ही बोल रहे हैं ना पिछले 70 साल से। Sir, one last question. The recent resolution to open merit has raised various concerns among the open merit. Will Mr. Sajjad will take this issue at the parliament? We will take a call at the right time. वो ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला है,
ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर इलेक्शन हुआ तो विल टेक अ राइट कॉल, विल सी इसमें क्या है। थैंक यू। अगर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ, क्या जेकेपीसी इलेक्शन में हिस्सा ले लेगी? हम हर हालत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, स्टेटहुड भी आएगा इंशाल्लाह, वो तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, लेकिन स्टेइंग अवे फ्रॉम इलेक्शंस इज द रीजन व्हाई वी आर इन सच अ बैड स्टेट। आई विल नेवर एडवोकेट कि इलेक्शन से दूर हो, इलेक्शन में ही रहकर जैसा है वैसा है, डेमोक्रेसी से ही इसका जो है हल। साई ओम पावर सिस्टम लाए है नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।